Hush. We'll study the lesson and I'll explain it to you along with the difficult word meanings. But lesson शुरू करने से पहले I'll give you an introduction about Anne Frank. Anne Frank was born on 12 June 1929 and died in 1945. She was a German-born Jewish girl. She wrote a diary while hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the Second World War. As the Nazis came to power in Germany, she, along with her family, moved to Amsterdam but got trapped when the Nazis occupied Netherlands. Now, Anne Frank was a German-born Jewish girl. तो ये जर्मनी में पैदा हुई थी और Jewish religion को belong करती थी. She was born on 12 June 1929 और 1945 में इसकी डेथ हो गई थी. ये जर्मनी में रहती थी, ज्यूइश थी और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी पर नाजीज ने कब्जा कर लिया था तब एन अपनी फैमिली के साथ बचने के लिए नीदरलैंड्स भाग गई. नीदरलैंड्स के कैपिटल एम्स्टरडैम में ये लोग जाकर छुप गए, लेकिन वहां पर भी नाजीज ने कब्जा कर लिया और इन्हें पूरे 2 साल तक वहां पर छुप कर रहना पड़ा. तो एन अपनी फैमिली और अपनी 4 दोस्तों के साथ एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स में 2 साल तक छुपी रही. The Jewish population was being persecuted and so the family went into hiding in July 1942 in Anne's father Otto Frank's office building. They remained in hiding for 2 years. Then they were shifted to a concentration camp where Anne died due to typhus within days of her sister Margot Frank. Their father Otto was the only survivor of the group. जैसे कि ज्यूइश पॉपुलेशन को मारा जा रहा था, एन अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ एन के फादर ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में जाकर छुप गए. तो ये लोग 1942 जुलाई के महीने में जाकर वहां पर छुप गए और पूरे 2 साल तक वहां पर छुपे रहे. उसके बाद उन्हें जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में शिफ्ट किया गया तो वहां पर पहले तो मार्गॉट फ्रैंक जो कि एन की बड़ी बहन थी उनकी डेथ हो गई और थोड़े दिनों में ही एन भी टाइफस की वजह से मर गई. इन दोनों लड़कियों के फादर ऑटो फ्रैंक वाज द ओनली सर्वाइवर. सिर्फ वो ही जिंदा बचे थे इन सब लोगों में से. After the war ended, he returned to Amsterdam and found Anne's diary. He got it published under the name The Diary of a Young Girl. The diary was a gift to Anne on her 13th birthday and it gives a detailed account of her life from 12 June 1942 until the final entry on 1st August 1944. जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो एन के फादर एम्स्टरडैम गए और उन्हें वहां पर एन फ्रैंक की डायरी मिली. उन्होंने इसे पब्लिश करवाया और एक बुक थी जिसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ये बहुत ही फेमस बुक है और आपके सिलेबस में एज एडिशनल रीडिंग टेक्स्ट भी है. एन फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर एक डायरी गिफ्ट में मिली थी और उसमें 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक एन ने एंट्रीज की और उसमें उन्होंने अपनी लाइफ के अलग अलग इंसिडेंसेस और अपनी फीलिंग्स की डिटेल लिखी. The diary was originally written in Dutch language and it became one of the world's most widely read books. ये जो बुक है The Diary of a Young Girl, इसे एन ने डच लैंग्वेज में लिखा था और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताब है. Many films, television and theatrical productions and an opera have been based on the diary. Anne Frank has become one of the most famous and talked about Holocaust victims. एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन के विक्टिम्स होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा फेमस नाम है एन फ्रैंक का. She also was a victim of large scale massive destruction which took place in the Second World War. और इनकी कहानी पर ये जो डायरी में इन्होंने एंट्रीज की थी इस पर बेस्ड बहुत सारी फिल्म्स, टेलीविजन और थिएट्रिकल प्रोडक्शंस और ओपेरास भी बने हैं. And here the lesson 4 that we are studying is an excerpt from this diary. एन फ्रैंक की ही इस डायरी की एक छोटे से हिस्से को हमारे चैप्टर के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. So let us begin reading this chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. So who is this me? This is Anne Frank. वो अपनी डायरी में
ये लिख रही हैं। वो कहती हैं कि डायरी में लिखना मेरे लिए एक बहुत ही अजीब और अनोखा अलग सा एक्सपीरियंस है। Not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Musings means a period of reflection or thought. आपके विचार जो कि आप डायरी में लिख रहे हैं। एंड कहती हैं कि उन्हें डायरी राइटिंग एक अजीब सा एक्सपीरियंस लगता है, क्योंकि डायरी लिखने के बाद कभी भी कोई उसे पढ़ेगा नहीं, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि एक 13 साल की स्कूल गोइंग लड़की क्या सोचती है, उसके क्या थॉट्स हैं। और वो कहती हैं कि उन्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि वो बाद में कभी फ्यूचर में अपनी डायरी पढ़ें और देखें कि पास्ट में वो क्या सोचती थी, उन्होंने डायरी में क्या क्या कुछ लिखा है। और इसी वजह से उन्हें कभी भी डायरी लिखना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि बहुत ही अजीब सी आदत है। Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. What do we mean by to get all kinds of things off my chest? To express something that has been worrying you and that you have wanted to say. अगर आपके दिमाग में कोई चीज घूम रही है, कोई बात चल रही है, आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, so you can say that I want to get all kinds of things off my chest. यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मेरे दिल पर बोझ बनकर बैठी हुई हैं और मैं उन्हें वहां से हटाना चाहती हूँ, अपना बोझ हल्का करना चाहती हूँ, इसलिए मैं किसी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो एन कहती हैं कि ऐसे ही उनके भी दिल में बहुत सारी बातें थी जिन्हें वो निकालना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें लिखना चाहिए। People has more patience than people. एन कहती हैं कि अगर आप अपनी बातें लोगों के साथ शेयर करें और उन्हें पेपर में या डायरी में लिख दें, दोनों चीजों में एक फर्क है। क्या फर्क है? वो कहती हैं कि लोगों में इतनी पेशेंस नहीं होती कि वो आपकी बात को आराम से सुने, लेकिन पेपर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी फीलिंग्स है, आप एक डायरी उठाएं या एक पीस ऑफ पेपर लें और उसके ऊपर अपनी फीलिंग्स को आराम से लिख दें, जितनी मर्जी डिटेल में लिखें, जितनी बारी लिखें, आपको पेपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करेगा। तो कहती हैं कि पेपर और लोगों में ये फर्क है, इसलिए लोगों को अपनी फीलिंग्स सुनाने से बेटर उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी फीलिंग्स एक डायरी में लिखनी चाहिए। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. एन ने ये चीज उस दिन रियलाइज की जिस दिन वो थोड़ी सी डिप्रेस थी, सैड थी, वो बहुत ही बोर हो रही थी। उन्होंने अपनी चिन को अपने हाथों में ऐसे रखा हुआ था और वो बैठी ये सोच रही थी कि क्या उन्हें घर में रहना चाहिए या कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए ताकि उनका माइंड चेंज हो सके, उनका मूड बेटर हो सके। I finally stayed where I was, brooding. Brooding means engaged in deep thought about something that makes one sad, angry or worried. आप अगर किसी भी चीज के बारे में डीप थॉट में हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और उस सोच की वजह से या तो आप दुखी हैं या गुस्से से भरे हुए हैं या चिंता से भरे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं that you are brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Grandly means in a proud manner, बहुत ही अच्छे से। किसी चीज को जब आप डायरी कहते हैं तो उसका मतलब ये बन जाता है कि वो बहुत ही प्रेशियस और बहुत ही अच्छी चीज है। तो एन कहती हैं कि मैं ऐसे ही सोच विचार में डूबी हुई थी और मैंने ये रियलाइज किया कि किसी से अपनी फीलिंग शेयर करने से बेटर है कि उसे मैं पेपर के ऊपर लिखूं, क्योंकि पेपर पेशेंट है, वो आराम से बहुत ही धैर्य के साथ मेरी बातों को सुनेगा और समझेगा। और फिर उन्होंने रियलाइज किया कि उनके पास एक डायरी है जो एक बहुत ही महान चीज है। वो एक नोटबुक है जिसकी स्टिफ बैक है। स्टिफ बैक मीन्स
उस पे बाइंड किया हुआ है, गत्ता लगाकर उसकी जो कवर है उसे स्टिफ बनाया हुआ है, और इसीलिए वो एक बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही लैविश चीज है जिसे हम डायरी कहते हैं। और जैसे कि एन कहती है कि उनके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं थी जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके, तो उन्होंने सोचा कि बेटर तो यही रहेगा कि वो इस डायरी को अपना फ्रेंड बना ले और इसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करे। Now, I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. एंड कहती हैं कि उन्हें डायरी इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि उनकी कोई ट्रू फ्रेंड, कोई सच्ची मित्र नहीं थी जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. एंड कहती है कि कोई भी उनकी इस बात को नहीं मानेगा कि वो दुनिया में अकेली हैं, क्योंकि एक 13 साल की लड़की अकेली नहीं हो सकती, उसकी फैमिली होती है उसके साथ। और वो कहती है कि हाँ, मेरी भी एक फैमिली है। I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. अब एन के पास इतना सब कुछ है, उनके पास पेरेंट्स है जो कि उन्हें प्यार करते हैं, उनके पास एक बहन है, ऑलमोस्ट 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें वो अपना फ्रेंड मान सकती हैं, रिलेटिव्स हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपनी इनर फीलिंग्स शेयर कर सके। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। All I think about when I'm with friends is having a good time. जब भी एन अपनी फ्रेंड्स के साथ होती हैं तो वो क्या करती है, मस्ती करती हैं, एंजॉय करती हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, और इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. वो ये सोचती हैं कि वो अपने किसी भी फ्रेंड के साथ बहुत क्लोज नहीं फील करती, इतनी क्लोज नहीं कि वो अपनी इनर फीलिंग्स उनके साथ शेयर कर सके। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें तो करती हैं, लेकिन वो सिर्फ रोजमर्रा की चीजों की बातें होती हैं, उससे ज्यादा बातें वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर पाती, और ये उनकी प्रॉब्लम है। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. Confide means to share secrets with someone. एंड ये सोचती हैं कि शायद ये उन्हीं की प्रॉब्लम है, उन्हीं की कोई गलती है, उनमें कोई कमी है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपने सीक्रेट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकती। नाउ मेनी ऑफ यू मस्ट बी रिलेटिंग योरसेल्फ टू एन। आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती होगी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नेचर ही इंट्रोवर्ट होती है, वो अपनी इनर फीलिंग्स रिजर्व रखते हैं, लोगों के साथ जल्दी जल्दी ओपन अप होके शेयर नहीं करते। वो भी ऐसा फील कर सकते हैं कि उनके पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपने सीक्रेट्स शेयर कर सके। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they're not liable to change. This is why I started the diary. एंड कहती है कि उनकी सिचुएशन ऐसी ही है और वो कभी बदलेगी नहीं, क्योंकि एक इंसान की नेचर कभी नहीं बदल सकती, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी फीलिंग्स डायरी के साथ शेयर करेंगी। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I didn't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. एंड कहती हैं जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जब वो एक डायरी लिखनी शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने पास्ट के बारे में लिखते हैं, लेकिन एन के लिए उनकी डायरी एक डायरी नहीं है, एक फ्रेंड है, एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड जिसकी उन्हें बहुत देर से इंतजार है, और इसलिए वो कहती हैं कि मैंने अपने इस फ्रेंड का नाम किटी रखा है। तो उन्होंने अपनी डायरी का नाम किटी रखा है, और वो उससे ऐसे बातें करती हैं जैसे कोई अपने फ्रेंड के साथ करता है, और इसीलिए उन्होंने अपनी कोई पास्ट की बातें, अपनी कोई इंट्रोडक्शन इसमें नहीं लिखी।
Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. To plunge right in means to start writing at that moment. A brief sketch of my life means an introduction. अब एन कहती हैं कि अगर आज से ही मैं डायरी में अपनी लाइफ के बारे में लिखना शुरू कर दूं, तो अगर कोई भी मेरी डायरी पढ़ेगा तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं अपने पास्ट के बारे में लिख रही हूँ, अपनी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जबकि मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई मेरी डायरी पढ़े तो वो आराम से समझ पाए, इसीलिए मैं अपनी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। My father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. तो अब एन अपनी एक इंट्रोडक्शन दे रही हैं। वो कहती हैं कि उनके फादर एक बहुत ही लविंग फादर हैं। उन्होंने 36 इयर्स की एज पर एन की मदर से शादी की, जो कि तब 25 की थी। एन की सिस्टर मार्गोट फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बॉर्न हुई थी 1926 में एंड एन वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. Emigrated means he left one's own country in order to settle permanently in another. अपने देश को छोड़कर किसी और देश में हमेशा के लिए सेटल होने के लिए शिफ्ट कर जाना। एन 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रही। 1933 में उनके फादर जर्मनी छोड़कर हॉलैंड चले गए। My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Aachen is a city in Germany. तो एन की मदर एडिथ सितंबर के महीने में उनके फादर के पास हॉलैंड चली गई और मार्गोट और एन अपनी दादी के पास आचेन में जाकर रहने लग गए। Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. Plunked down means put down abruptly. अचानक से किसी चीज को रख देना। तो एन कह रही है कि दिसंबर के महीने में उनकी बड़ी बहन हॉलैंड चली गई और फरवरी में वो भी हॉलैंड चली गई और एन को उनकी बड़ी बहन मार्गोट को प्रेजेंट किया गया कि ये लो, ये तुम्हारे लिए एक जन्मदिन का तोहफा है, तुम्हारी छोटी बहन। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. First form here means class 1. तो पहले तो एन को मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाया गया टिल शी टर्न्ड 6 years of age और फिर उन्होंने क्लास 1 में एडमिशन ली। In the 6th form, my teacher was Mrs. Kuperis, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. Headmistress is a woman who is a head teacher in a school. तो जब एन 6th फॉर्म में थी यानी कि 6th क्लास में थी तो उनकी जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी वही उनकी क्लास टीचर भी थी। उनका नाम था मिसेस क्यूपेरिस। जब उनका ईयर खत्म हुआ, सेशन खत्म हुआ, तो उनकी टीचर और एन दोनों ही रो रही थी क्योंकि वो बहुत दुखी थी एक दूसरे से अपार्ट होने पर। तो एन ये कह रही है कि उनमें और उनकी टीचर मिसेस क्यूपेरिस में एक अच्छी बॉन्डिंग थी। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 की गर्मियों में एन की दादी माँ बीमार हो गई, उनका एक ऑपरेशन हुआ, इसलिए एन के बर्थडे पर सेलिब्रेशन नहीं की गई। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. Next year, January 1942 में एन की ग्रैंडमा मर गई। एन कहती हैं कि वो अभी भी उनके बारे में सोचती हैं और उन्हें प्यार करती हैं। 1942 में जब एन का बर्थडे आया
तो उसकी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की गई और उनकी दादी माँ की तरफ से भी उनके केक पर कैंडल लगाई गई. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. Solemn means something which is sacred. एन कहती हैं कि एन, उनकी बड़ी बहन मार्गोट, उनकी मदर एडिथ और उनके फादर ऑटो फ्रैंक सब बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं और फाइनली वो आज की डेट पर पहुंच जाती हैं. उनकी इंट्रोडक्शन खत्म हो गई है और आज की डेट क्या है? 20 जून 1942, जब से एन ने डायरी लिखनी शुरू की. सैटरडे 20 जून 1942. तो ये है एन की डायरी की फर्स्ट एंट्री मेड ऑन 20th June 1942. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots means shaking with fear and nervousness. घबराहट और डर से हिलना, कांपना. तो एन अपनी क्लास की बात कर रही है, अपने स्कूल की बात कर रही है. वो कहती है कि उनकी पूरी क्लास डर के मारे घबरा रही है, शेक कर रही है, कांप रही है. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. To make bets means शर्त लगाना. आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या रिजल्ट होगा. सब बच्चे क्यों कांप रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला है. ये पता चलेगा कि कितने बच्चे पास हो गए और कितने बच्चे फेल हो गए. इसलिए सारी क्लास के बच्चे ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या वो पास होंगे या फेल होंगे और इसी वजह से वो डर के मारे कांप रहे हैं और घबरा रहे हैं. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jackus, who have staked their entire holiday savings on their bet. Stake means put on risk. एन कहती हैं कि एन और उनकी फ्रेंड जिसका नाम है GN दोनों बहुत ज्यादा हंसती हैं क्योंकि दो लड़के हैं उनकी क्लास में जो कि उनके पीछे बैठते हैं. उनका नाम है CN एंड जैकस. इन दोनों लड़कों ने शर्त लगाई हुई है और उन्होंने अपनी सारी जो बचाई हुई पैसे हैं हॉलीडेज में, जो वो पैसे बचाते हैं, जोड़ते हैं, वो रिस्क पर लगाए हुए हैं, स्टेक पर लगाए हुए हैं. आपस में शर्त लगाई हुई है कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा. तो सारा दिन ये दोनों लड़के आपस में यही डिस्कस करते रहते हैं कि क्या वो पास होंगे या फेल होंगे. और उनकी ये हालत देखकर एन और उनकी फ्रेंड GN बहुत ज्यादा हंसती हैं. ऐसे लगता है कि वो हंस हंस के पागल हो गई हैं. From morning to night, it's you're going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. तो एन कहती है कि वो जो दो लड़के हैं CN एंड जैकस, वो सारा दिन सुबह से लेकर रात तक यही बातें करते रहते हैं. तुम पास होगे? नहीं, मैं नहीं होऊंगा. हाँ, तुम होगे? नहीं, मैं नहीं होऊंगा. तो वो ऐसे ही करते रहते हैं और ऐसे जब वो करते हैं तो उन्हें देखकर एन और उनकी फ्रेंड GN बहुत ज्यादा हंसती है. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. Pleading means requesting. G है जो वो हर वक्त उन लड़कों से रिक्वेस्ट करती रहती है कि प्लीज ये बातें करना बंद करो. एंड उन्हें बहुत गुस्से से देखती है, डांटती है, लेकिन फिर भी वो ये सब बातें करने से नहीं हटते. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. एन कहती हैं कि अगर मुझसे पूछो तो मैं तो कहूंगी कि क्लास में ऑलमोस्ट 1/4 यानी कि 1/4 बच्चे डमीज हैं. डमीज मीन्स दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर वेरी वीक इन स्टडीज. और वो कहती हैं कि मेरे हिसाब से तो 1/4 क्लास को फेल कर देना चाहिए, डिटेन कर देना चाहिए, उन्हें नेक्स्ट क्लास में नहीं भेजना चाहिए. लेकिन एन कहती हैं कि पता नहीं टीचर्स क्या डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि टीचर्स क्या सोच रहे हैं और वो क्या डिसाइड करेंगे. I'm not so worried about my girlfriends and myself. We'll make it. The only subject I'm not sure about is maths. एन कहती हैं कि एन और उनकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स here means all those females or girls who are Anne's friends.
तो कहती है कि एन और उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो सब तो पास हो ही जाएंगी, सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसमें एन को चिंता है, वो है मैथमेटिक्स. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. Anne says that all we can do is wait. That means Anne and all the children in the class are waiting for the result. Anne says that we keep telling each other not to lose heart. Not to lose heart means अपने दिल को कमजोर ना करो. ऐसे मत सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, तुम्हारा रिजल्ट बुरा आएगा, ऐसा मत सोचो. Anne says that I get along pretty well with all my teachers. तो Anne की अपनी सारी टीचर्स के साथ बहुत अच्छी से बनती है, वो बहुत फ्रेंडली हैं उनके साथ. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Total Anne has 9 teachers. 7 are men यानी कि male teachers and 2 women यानी कि female teachers. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. Annoyed means angry. And who is a foggy person? An old-fashioned person. And says उनके जो मैथमेटिक्स के टीचर थे उनका नाम था मिस्टर कीजिंग. वो एन के साथ बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि एन बहुत ज्यादा बातें करती थी. She was a talkative girl. After several warnings, he assigned me extra homework. An essay on the subject, a chatterbox. Chatterbox is a talkative person, जो हर वक्त चैटर करता है यानी कि बोलता रहता है. एन के टीचर मिस्टर कीजिंग ने उन्हें बहुत बार वार्न किया कि क्लास में बातें नहीं करनी, लेकिन वो हटती नहीं थी. इसलिए मिस्टर कीजिंग ने एन को एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट थी. She was supposed to write an essay on the topic a chatterbox. तो वो chatterbox से किसको इम्प्लाई कर रहे थे? एन फ्रैंक को. और वो ये कहना चाहते थे कि एन खुद ही अपने बारे में एक ऐसे लिखे कि वो बहुत ज्यादा बातें करती है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ताकि वो खुद ही ये रियलाइज कर सके कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए. A chatterbox. What can you write about that? I'll worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. Jotted down means wrote down. Now, Anne ने ये सोचा कि ये जो टॉपिक मिला है एस्से का, अ चैटरबॉक्स, इसके बारे में वो क्या लिख सकती हैं. फिर उन्होंने सोचा कि बाद में सोचूंगी, इसलिए उन्होंने इस टॉपिक को अपनी कॉपी में, डायरी में लिख लिया कि इस पर मैंने एक ऐसे लिखना है. डायरी को अपने बैग में रखा और चुप रहने की कोशिश की. दैट मीन्स शी इज अ कंपल्सिव चैटरबॉक्स. नेचर से ही उन्हें बातें करने की आदत है और हो सकता है इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपनी इनर फीलिंग्स, अपने सीक्रेट्स शेयर कर सके. ऐसा कोई लिसनर नहीं है जिसको वो पूरा दिन अपनी बातें सुना सके, क्योंकि उन्हें बोलने का बहुत ज्यादा शौक है. That evening, after I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. Caught my eye means उन्हें वो दिखा. उन्हें ये एक बार फिर से याद आया कि उन्हें essay लिखना है. She's got an extra assignment. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. एन अपने फाउंटेन पेन की टिप को मुंह से चबा रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि ऐसे में क्या लिखूं. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब यहाँ पर हमें एन की एक और क्वालिटी पता चलती है, that she was very intelligent. Ramble on means to talk or write aimlessly for long. बहुत ही ज्यादा देर तक बिना किसी मतलब के कुछ भी बोलते रहना या लिखते रहना. That is to ramble on. Arguments means a statement made in such a manner that people believe it. आप एक लॉजिकल रीजनिंग देते हैं अपनी बात के लिए ताकि वो बिलीवेबल लगे, लोग उस पर विश्वास कर सके. एन कहती है लिखने को तो वो बड़ी बड़ी जगह छोड़कर पेजेस भर सकती थी और उसमें कुछ भी लिख सकती थी जिसकी चाहे सेंस बने चाहे ना बने. लेकिन द ट्रिक
Trick means the main motive was to come up with convincing arguments. ऐसी बातें लिखूं, ऐसी लॉजिकल रीजनिंग दूं जिससे कि टॉकिंग की यानी कि बातें करने की नेसेसिटी प्रूव हो सके. वो ये प्रूव कर सके, मिस्टर कीजिंग को ये बता सके कि उनके लिए बातें करना, चैटर बॉक्स बनना कितना ज्यादा जरूरी है. एन ने ये सोचा कि वो ऐसे में कुछ ऐसी चीजें लिखेंगी जिनसे वो अपनी इस आदत को वैलिड बना सके, उसे एक लॉजिकल रीजनिंग दे सके और जस्टिफाई कर सके. सो दिस शोज शी वाज सो इंटेलिजेंट. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. एन ने बहुत ज्यादा सोचा कि वो क्या लॉजिकल रीजनिंग दे सकती हैं कि उनके लिए बातें करना बहुत जरूरी है. उन्होंने बहुत सोचा और फाइनली 3 पेजेस में अपना एसे लिखा और वो बहुत ही सेटिस्फाइड थी कि उन्होंने एक अच्छी लॉजिकल रीजनिंग गैदर कर ली थी. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. Trait is a quality, एक feature या characteristic. And what is an inherited trait? A quality, physical or mental, that one gets from one's parents. अगर आपने अपने पेरेंट्स से एक क्वालिटी ली है, एक ट्रेट लिया है, तो उसे आप कहेंगे इनहेरिटेड ट्रेट. एन ने क्या रीजनिंग दी अपने एसे में? उन्होंने क्या कहा कि वो बातें क्यों करती हैं? वो कहती हैं कि एक स्टूडेंट की बेस्ट क्वालिटी है बातें करना. और फिर उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगी कि वो अपनी इस नेचर को कंट्रोल में रखें, कम से कम बात करें, लेकिन वो कभी भी अपनी बातें करने की हैबिट से अपने आप को क्योर नहीं कर पाएंगी, यानी कि इस हैबिट को फुल्ली खत्म नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने ये क्वालिटी अपनी मदर से इनहेरिट की है. उनकी मदर भी बहुत ज्यादा टॉकेटिव है. अगर उनसे ज्यादा नहीं तो एन जितनी ही वो भी बातें करती हैं. और अगर आपके पास कोई इनहेरिटेड क्वालिटी है, यानी कि अगर कोई ऐसी क्वालिटी है जो कि आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में ली है, तो आप उस क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं कर सकते, यानी कि वो क्वालिटी तो आपके अंदर रहेगी ही रहेगी, आप उसको खत्म नहीं कर सकते. तो ये सब रीजनिंग दी थी एन ने, ये सब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए थे एन ने अपनी इस हैबिट को जस्टिफाई करने के लिए. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. एन के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पढ़कर मिस्टर कीजिंग बहुत ज्यादा हंसे. उन्हें उसका एसे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. ऐसा लगा दैट यस शी इज वेरी इंटेलिजेंट द वे शी हैड रिटन द एसे. बट एन ने अपनी हैबिट को खत्म नहीं किया. उन्होंने अपने एसे में ही लिख दिया था कि वो इस आदत को टोटली खत्म नहीं कर पाएंगी. और जब वो अपने नेक्स्ट लेसन में, मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में फिर से बातें करने लगी, तो मिस्टर कीजिंग ने उन्हें सेकेंड असाइनमेंट दे दी. वो एक अनदर एसे था और एसे का टॉपिक क्या था? दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स. इनकॉरिजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी. तो अब मिस्टर कीजिंग ने एन की इस क्वालिटी को बुरा बना दिया था. उन्होंने कहा कि अब ऐसे लिखो, टॉपिक है एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, एक बुरी क्वालिटी जो कि एन में थी कि वो बहुत ज्यादा बातें करती थी. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he'd finally had enough. एन ने दोबारा से ऐसे लिखा एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर और उसने वो ऐसे सबमिट कर दिया. 2 लेसन्स तक मिस्टर कीजिंग ने एन को नहीं रोका, उन्हें बातें करने से नहीं मना किया, लेकिन 3rd लेसन में वो इतना ज्यादा फेडअप हो गए थे कि उन्होंने फिर से एन को एक और असाइनमेंट दिया और इस बार टॉपिक था एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. तो मिस्टर कीजिंग ने एन को कहा
कि तुम क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती हो और पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें एस्से लिखना पड़ेगा। थर्ड टाइम उन्होंने एन को एस्से लिखने को कहा एंड द टाइटल वाज क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। The class roared. I had to laugh too, though I'd nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. Ingenuity means originality and inventiveness. जब मिस्टर कीजिंग ने एन को थर्ड टाइम पनिशमेंट के रूप में ऐसे लिखने को कहा तो सारी क्लास हंसने लग गई, एन भी हंसने लग गई, लेकिन अब एन के पास एक और ऐसे लिखने के लिए कोई भी आइडियाज नहीं थे। वो कहती है कि चैटर बॉक्सेस के टॉपिक पर वो इतना कुछ लिख चुकी थी कि थर्ड ऐसे के लिए उनके पास कोई ओरिजिनल आइडियाज और इन्वेंटिव आइडियाज नहीं थे। It was time to come up with something else, something original. अब एन ने सोचा कि उन्हें कुछ और लिखना पड़ेगा, एक ओरिजिनल क्रिएशन बनानी पड़ेगी अपनी इस हैबिट को जस्टिफाई करने के लिए। तो अब क्या हो रहा है, एक तरफ पे है मिस्टर कीजिंग और एक तरफ पे है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक अपनी बातें करने की आदत से नहीं हट रही और मिस्टर कीजिंग उसे चैटर बॉक्सेस के ऐसे लिखने की पनिशमेंट देते जा रहे हैं। अब उन्होंने जब तीसरी बार एन को पनिशमेंट दी और कहा कि क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखो, तो एन ने ये सोचा कि अब उन्हें कुछ ओरिजिनल लिखना पड़ेगा, बहुत ही कन्विंसिंग ऐसे लिखना पड़ेगा। My friend Sani, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Verse means a rhyming poem. तो एन की एक फ्रेंड थी सैनी जो कि बहुत अच्छी थी पोइट्री में और उसने ऑफर किया कि वो एन की मदद कर सकती है कि वो अपने एस्से को पोइटिक फॉर्म में लिखे और एन खुशी से जंप करने लगी। वो बहुत एक्साइटेड थी कि वो एक ओरिजिनल चीज लिख पाएंगी अगेन। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. Ridiculous means funny. मिस्टर कीजिंग क्या कर रहे थे, वो बार बार एन को चैटर बॉक्स के बारे में लिखने को कह रहे थे। वो ये चाहते थे कि एन ये रियलाइज करे कि उनकी ये हैबिट एक अच्छी क्वालिटी नहीं है और वो उसे खत्म कर दे। लेकिन एन क्या कर रही थी, वो भी ये कोशिश कर रही थी कि मिस्टर कीजिंग एन का मजाक ना बना पाए, उल्टा एन मिस्टर कीजिंग का मजाक बनाना चाहती थी अपनी इस हैबिट को बार बार जस्टिफाई करके। वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि उसकी ये हैबिट है, जो वो बातें करती है, ये एक बुरी क्वालिटी है। इसलिए वो ऐसे एसेज लिखती थी जिसमें वो अपनी इस क्वालिटी की रीजनिंग दे सके, उसे जस्टिफाई कर सके। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. एन ने जो पॉम लिखी वो एक मदर डक, फादर स्वैन और उनके 3 बेबी डकलिंग्स के बारे में थी, जिसमें कि जो बेबी डकलिंग्स थे वो बहुत ज्यादा क्वैक करते थे, बहुत ज्यादा शोर करते थे, उन्हें भी आदत थी बहुत ज्यादा बोलने की, जिसकी वजह से उनके फादर स्वैन ने उन्हें काट काट कर मार दिया। तो एन ये मानती हैं कि उनकी ये पोएम बहुत ज्यादा अच्छी थी। Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. तीसरी बार भी एन सक्सेसफुल थी, उन्होंने मिस्टर कीजिंग पर जोक कर लिया था। मिस्टर कीजिंग ने इस जोक को सही तरीके में लिया, उन्होंने एन की इस पोएम को पॉजिटिव लिया और वो भी उसे पढ़कर हंसने लगे। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. मिस्टर कीजिंग को ये पॉम इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने क्लास में भी सुनाई, अपने कमेंट्स भी ऐड किए और बहुत सारी दूसरी क्लासेस में भी ये पॉम सुनाई। और उस पॉम के बाद, उस असाइनमेंट के बाद एन को क्लास में बातें करने भी अलाउ की गई और उन्हें एक्स्ट्रा असाइनमेंट नहीं मिली। तो फाइनली मिस्टर कीजिंग ने गिव अप कर दिया। उन्होंने एन की इस हैबिट को पॉजिटिव लिया, उसे एक बैड क्वालिटी नहीं समझा और एन को बातें करने दी। सो एन वाज सक्सेसफुल। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के साथ, अपनी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ अपनी टॉकेटिव हैबिट को जस्टिफाई कर लिया।
On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. Yours, Anne. तो एन ने क्या किया, उसने मिस्टर कीजिंग को चेंज कर दिया, उन्हें एक नई हैबिट दे दी, वो क्या थी, जोक्स करने की। तो मिस्टर कीजिंग भी थोड़े लाइवली हो गए, थोड़े हिलेरियस हो गए, और वो भी अब अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ जोक करते थे और थोड़े फनी हो गए थे। सो दिस इज हाउ मिस्टर कीजिंग changed due to the essays which Anne Frank wrote. Anne Frank की असाइनमेंट्स पढ़कर मिस्टर कीजिंग की नेचर में बदलाव आ गया, वो भी थोड़े लाइट माइंडेड हो गए और जोक्स क्रैक करने लगे। योर्स एन, इसके साथ एन की ये डायरी एंट्री